میں خیبر پختونخوا اسمبلی میں مخصوص نشستوں پر منتخب اراکین کی حلف برداری نہ ہو سکی۔ خیبر پختونخوا کا اجلاس 2.5 گھنٹے تاخیر کے بعد شروع ہوا۔ اجلاس شروع ہوتے ہی کورم کی نشاندہی کر دی گئی۔ اجلاس کے لیے صبح 9 بجے کا وقت مقرر تھا، جس پر گھنٹیاں بھی بجائی گئیں، مگر ایوان خالی ہونے سے کارروائی تاخیر کا شکار ہو گئی۔ اجلاس کی صدارت اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی بابر سلیم سواتی نے کی۔ اسمبلی اجلاس شروع ہوتے ہی ایم پی اے شیر علی آفریدی نے کورم کی نشاندہی کر دی۔ حکومتی اراکین کورم کی نشاندہی کر کے ہال سے نکلنا شروع ہو گئے۔ اپوزیشن اراکین نے اسپیکر کو حلف لینے پر آمادہ کرنے کی کوشش کی۔ اسپیکر اسمبلی نے کہا کہ اسمبلی میں ارکان کی تعداد 25 ہے، کورم پورا نہیں ہے۔ اپوزیشن کی جانب سے اسمبلی میں شدید نعرے بازی کی گئی۔ اپوزیشن ارکان اسپیکر ڈائز کے سامنے جمع ہوئے۔ اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی نے اجلاس 24 جولائی دن 2 بجے تک کے لیے ملتوی کر دیا۔ پشاور ہائی کورٹ میں اپوزیشن کی درخواست پر مخصوص نشستوں پر حلف برداری کے لیے گورنر کے پی کو نامزد کر دیا گیا۔ اپوزیشن جماعتوں نے مخصوص نشستوں پر اراکین کی حلف برداری کسی فرد کو نامزد کرنے کی درخواست دائر کی تھی۔ رجسٹرار پشاور ہائی کورٹ کے پاس جمع کرائی گئی درخواست کے پی اسمبلی کی اپوزیشن جماعتوں، پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتوں کی جانب سے دائر کی گئی تھی۔ ایڈیشنل سیکرٹری جنرل پیپلز پارٹی پختونخوا نے اس حوالے سے بتایا کہ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ مخصوص نشستوں پر کے پی اسمبلی میں منتخب ارکان سے حلف نہیں لیا گیا۔ درخواست میں استدعا کی گئی تھی کہ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ مخصوص نشستوں پر اراکین کی حلف برداری کے لیے کسی کو نامزد کریں۔ خیبر پختونخوا میں مخصوص نشستوں کے معاملے پر پاکستان تحریک انصاف کے رہنما بیرسٹر ڈاکٹر سیف نے شدید رد عمل دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ مخصوص نشستوں پر اپوزیشن اراکین کا حلف لینا پارلیمانی سیاست کے سیاہ ترین باب کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ بیرسٹر سیف نے الزام عائد کیا کہ 26ویں آئینی ترمیم کا سہارا لے کر پارلیمانی اصولوں کو بری طرح پامال کیا گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ عوام کی طرف سے مسترد شدہ جماعتوں کو پی ٹی آئی کی مخصوص نشستیں دی گئیں، جو نہ صرف غیر جمہوری ہے بلکہ عوامی رائے کی توہین بھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مخصوص نشستوں پر زبردستی قابض ہو کر اپوزیشن نے پارلیمانی سیاست کی ساکھ کو شدید نقصان پہنچایا ہے، اور اس عمل کے ذمہ دار وہ سیاستدان ہیں جو اقتدار کے لیے ہر حد پار کرنے پر آمادہ ہیں۔ بیرسٹر سیف نے کہا کہ اگر اپوزیشن میں اخلاقی جرت ہوتی تو یہ مخصوص نشستیں قبول نہ کرتی، لیکن اقتدار کی ہوس نے ان سے سیاسی اصول چھین لیے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اپوزیشن جماعتیں جیتنے کے باوجود غیر مطمئن نظر آتی ہیں، جبکہ پی ٹی آئی عوام کی بھرپور حمایت کے باعث ہار کر بھی مطمئن ہے۔ پنجاب اسمبلی میں سینٹ کی خالی نشست پر انتخاب کل ہوگا۔ 4 امیدوار مد مقابل ہوں گے۔ حکومتی اتحاد کو واضح برتری حاصل ہے۔ خالی نشست پر مسلم لیگ نون کے حافظ عبدالکریم، تحریک انصاف کے مہر عبدالستار، جبکہ خدیجہ صدیقی اور اعجاز منہاس آزاد حیثیت سے الیکشن لڑ رہے ہیں۔ پنجاب اسمبلی کی مجموعی نشست 371 ہیں، جن میں سے اس وقت 2 نشستیں خالی ہیں۔ یوں سینٹ الیکشن کے لیے 369 ووٹ دستیاب ہوں گے۔ کامیابی کے لیے امیدوار کو کم سے کم 185 ووٹ حاصل کرنا لازمی ہوں گے۔ حکومتی اتحاد کو اس وقت 261 ووٹوں کی حمایت حاصل ہے، جن میں مسلم لیگ نون کے 229، پیپلز پارٹی کے 16، مسلم لیگ نون کے 11، مسلم لیگ ذات کے 1 اور استحکام پاکستان پارٹی کے 7 ووٹ شامل ہیں۔ اپوزیشن اتحاد کو مجموعی طور پر 108 ووٹ حاصل ہیں، جن میں سنی اتحاد کونسل کے 76، تحریک انصاف کے 27، تحریک لبیک اور مجلس وحدت مسلمین کے 1 ووٹ شامل ہیں۔ اسلام آباد میں سیف سٹی سسٹم کو وسعت دینے کے لیے مزید 3000 سے زائد کیمرے لگانے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے سیف سٹی ہیڈ کوارٹرز کے دورے کے دوران آن لائن ویمن پولیس اسٹیشن اور ون انفو ایپ کا افتتاح کیا۔ سیف سٹی کے ڈیجیٹل وال پر شہر کی مانیٹرنگ کے عمل کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر داخلہ نے خواتین اور کمزور طبقات کی فوری مدد کے لیے آن لائن پلیٹ فارمز فعال بنانے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا، ایپ اور آن لائن ویمن پولیس اسٹیشن جدید ٹیکنالوجی کے عکاس ہے۔ ون انفو ایپ سے ایمرجنسی شکایات درج کرائی جا سکیں گی۔ محسن نقوی نے کہا کہ سیف سٹی پروجیکٹ نے جرائم کی روک تھام اور فوری رسپانس میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ انہوں نے سیف سٹی کی مانیٹرنگ کو مزید مؤثر بنانے کی ہدایت کی۔ سرویلنس کے نظام کو جدید ٹیکنالوجی اور اے آئی سے لیس کیا جائے۔ اسلام آباد کو محفوظ ترین شہر بنانے کے لیے سیف سٹی منصوبے کو ماڈل کے طور پر اپنایا جائے۔ وزیر داخلہ نے سیف سٹی اسلام آباد کو دیگر سیف سٹیز سے منسلک کرنے پر بھی کام کی ہدایت کرتے ہوئے کہا، تمام سیف سٹیز کو آپس میں جوڑنے سے ڈیٹا شیئرنگ میں بہتری آئے گی۔ اب میں اسکول آن ویل، موبائل لائبریری آن ویل اور موبائل لائبریری شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے اسکول آن ویل کی اصولی منظوری دے دی۔
सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने स्कूल ऑन व्हील, लाइब्रेरी ऑन व्हील और दीगर मंसूबों के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी। वज़ीर तालीम पंजाब का कहना था कि स्कूल ऑन व्हील दूर दराज और दुश्वार गुजार इलाकों में बच्चों को ज़ेवर तालीम से आरास्ता करेगा। स्कूल ऑन व्हील इलेक्ट्रिक रक्शे में बनाया जाएगा। रक्शे की छत पर सोलर पैनल्स लगाए जाएंगे। स्कूल ऑन व्हील में मौजूद टीचर किसी गली मोहल्ले या बस्ती में छतरी नुमा साइबान के नीचे फोल्डिंग कुर्सियां लगाएंगे। उन्होंने कहा कि स्कूल ऑन व्हील में पढ़ने वाले बच्चों को किताबें भी मुहैया की जाएंगी। स्कूल ऑन व्हील में नन्हे बच्चों की दिलचस्पी के लिए पेंटिंग का सामान भी मौजूद होगा। स्कूल ऑन व्हील में छोटे बच्चों की दिलचस्पी के लिए मुख्तलिफ एजुकेशनल ट्वाइज भी रखे जाएंगे। दौरान ब्रीफिंग बताया गया कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के पढ़ोगे तो बढ़ोगे के विजन के मुताबिक मोबाइल लाइब्रेरी प्रोजेक्ट भी शुरू किया जाएगा। जदीद तरीन बस के अंदर कायम मोबाइल लाइब्रेरी में बच्चों के बैठने के लिए चेयर्स और टेबल्स भी मुयस्सर होंगी। मोबाइल लाइब्रेरी में उर्दू, इंग्लिश और साइंस की बुक्स के अलावा मैगजीन भी रखे जाएंगे। और यहाँ आपको खबर दें कि अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत बिला सूद कर्जों की फराहमी के लिए बैंक ऑफ पंजाब और महकमा हाउसिंग में मुआहिदा हो गया। इसी पर तफसीलात जान लेते हैं ब्यूरो चीफ लाहौर गौहर सईद से। गौहर, आगाह कीजिएगा। जी गौहर, बताइएगा क्या तफसीलात हैं। जी बिल्कुल, अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत बिला सूद कर्जों की फराहमी के लिए बैंक ऑफ पंजाब और महकमा हाउसिंग के दरमियान एक मुआहिदा तय पा गया है। जबकि इस मुआहिदे की तकरीब में वजीर हाउसिंग पंजाब बिलाल यासीन और सदर बैंक ऑफ पंजाब जफर मसूद ने भी शिरकत की है और अपनी छत अपना घर प्रोग्राम की माफाहमी याददाश्त पर जी सिकंदर जिशान और बैंक ऑफ पंजाब के उमर खान ने दस्तावेजात पर दस्तखत किए और इस तकरीब में वजीर हाउसिंग के माली साल 2025 से 26 तक तमाम घरों की तामीर के लिए बिलासूद कर्जों की फाइनेंसिंग बैंक ऑफ पंजाब करेगा। और इसके अलावा वजीर हाउसिंग ने आगाह किया है कि सालाना अहदाफ के बर वक्त तकमील के लिए वजीर पंजाब ने MFI की तजावीज़ में मंजूर कर लिया। और वजीर हाउसिंग बिलाल यासीन ने मजीद बताया है कि अब तक 52,000 लोगों को 60 अरब रुपए के कर्जे तकसीम किए जा चुके हैं और मजीद अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत 90 करोड़ रुपए माहाना एक साथ कीमत में भी जमा हो चुके हैं और 10 अरब से ज्यादा रकम दरख्वास्त गुजारों में अगले माह तक भी तकसीम कर दिए जाएंगे। इसके अलावा इस तकरीब में सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मेंगल का कहना था कि 1 साल में 1 लाख से ज्यादा घरों की तामीर मुकम्मल करने का टास्क मिला है और हम कामयाबी से पूरा भी करेंगे और हमने कर्ज के फराहमी में दरख्वास्त जमा कराने का तरीका आसान कर रखा है। सेक्रेटरी हाउसिंग का मजीद कहना था इस हवाले से कि शहर की आसानी के लिए हेल्पलाइन का नंबर भी मुतारिफ करवा दिया गया है जिसमें वो बासानी रहनुमाई हासिल कर सकें। जबकि इस तकरीब में CEO अकबर डॉक्टर कामरान और RCDP मुर्तजा खोखर और रीजनल मैनेजर NRCP जवाद रहमानी ने भी शिरकत की है। जी बहुत शुक्रिया गौहर सईद, आपने तफसीलात से आगाह किया। सिंध हुकूमत का तालीमी इनकलाब, जामियात के लिए रिकॉर्ड 42 अरब का बजट और नौजवानों के लिए डिजिटल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स का आगाज कर दिया गया। हुकूमत सिंध ने पीपल्स IT प्रोग्राम का दूसरा मरहला शुरू कर दिया। 1.4 अरब रुपए का बजट मुख्तस। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि पीपल्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोग्राम नौजवानों को डिजिटल मईशत का हिस्सा बनाने के लिए एक मॉडल प्रोग्राम बन चुका है। पहले मरहले के तहत अब तक 13,565 तलबा को जदीद IT शोबों में तरबियत दी गई है। बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले 300 तलबा को मेरिट और शफाफ अमल के तहत गूगल क्रोम बॉक्स और लैपटॉप्स भी फराहम किए गए हैं। तौसी मरहले के तहत 12 हाई डिमांड IT शोबों में 35,000 तलबा को जदीद तरीन तरबियत दी जाएगी। हुकूमत सिंध ने तालीमी शोबे में नई तारीख रकम की है। नई नस्ल को जदीद टेक्नोलॉजी से लेस करने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। शर्जील इनाम मेमन ने मजीद कहा कि NED यूनिवर्सिटी में फूड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की नई इमारत 96 मिलियन रुपए की लागत से तामीर की गई है। सिंध हुकूमत नौजवानों को तालीमी मौके फराहम करने के साथ साथ अमली जिंदगी के लिए भी तैयार कर रही है ताकि वो मुल्की मईशत में मज़बूत किरदार अदा कर सकें।
मौसम के हवाले से खबर है कि महकमा मौसमियात ने 25 जुलाई तक मजीद बारिशों की पेशगोई की। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने मुमकिन सैलाबी सूरत हाल के खदशे पर अलर्ट जारी कर दिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक रावलपिंडी और इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलूचिस्तान में शदीद बारिशों के नतीजे में नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आने का खतरा है। खैबर पख्तूनख्वा में दरियाए काबुल, सवात, पंचकोड़ा, कालपनी नाला और बारा नाला में तुग़यानी का खदशा जाहिर किया गया है। शदीद बारिशों के पेश नज़र करीबी आबादियों को अलर्ट रहने की हिदायत की गई है। NDMA ने तमाम मुतालिका इदारों को हिदायत की कि पेशगी हिफाजती इक़दामात मुकम्मल किए जाएँ। अवाम से गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की अपील की गई है। अहम खबर आपको देंगे दरियाए सतलज की जानिब से, जहां बारिश की पानी की सतह में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। दूसरी जानिब ज़मीनी कटाव भी शुरू हो चुका है, जिसके बायस कई एकड़ ज़मीन सैलाब की जद में आ गई है। मज़ीद तफसीलात के लिए दरियाए सतलज के मकाम पर मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे हसनैन परहार। हसनैन, यहाँ पर क्या सूरत हाल है? हाँ जी बिल्कुल, दरिया सतलुज की जो है वो आमद ही आमद है। और इस टाइम जो है दरिया सतलुज ब्रिज के ऊपर जो है बहावलपुर में जो है पानी की सतह में जो है दिन ब दिन जो है इजाफा देखने को आ रहा है। लेकिन इस टाइम जो है मौसम जो है बहावलपुर का वो भी सुहाना हो चुका है। और महकमा मौसमियात के मुताबिक जो है 2-4 दिन के दौरान जो है वो बारिश का इम्कान बताया जाता है। अगर दूसरी तरफ हम बात करें, दफा 144 जो है था वो लगाया गया था इंतजामिया के तरफ से, जो है वो दफा 144 लगाया गया था। अगर कोई बहावलपुर की आवाम जो है इसके खिलाफ वर्जी करती है तो उसके ऊपर जो है वो एक्शन लिया जाएगा। अगर आप देख सकते हैं मेरे दूसरी तरफ जो है इस टाइम पानी का जो बहाव है वो मजीद बढ़ता जा रहा है। अगर मेरा कैमरा मैन दिखा सके तो यहाँ पे जितनी भी आबादी है, जमीनी कटाव वो भी शुरू हो चुका है। और मुख्तलिफ जो है यहाँ के लोग हैं, उनका यही कहना है कि हमारी जो जमीनें हैं वो इस दरिया के कटाव का शिकार हो रही हैं। और दूसरी तरफ अगर देखें इंतजामिया की तरफ से तो यहाँ पे जो है हिफाजती बंद वगैरह लगाकर जो है वो भी इकदाम किए गए हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने चकवाल और जेहलम के सैलाब से मुतासरा इलाकों का फ़ज़ाई जायज़ा लिया। वज़ीर आला पंजाब को सैलाब से तबाह होने वाले इलाकों पर मुतालिका हुकाम की जानिब से तफसीली ब्रीफिंग दी गई। इसके अलावा मरीम नवाज ने चकवाल में बारिश के दौरान हादसात में जाँ बहक अफराद के वर्सा को 10-10 लाख रुपए देने का ऐलान किया। वज़ीर आला मरीम नवाज ने तमाम राब्ता पुलों की बहाली और जेहलम रोड पर स्टील पुल बनाने की हिदायत की है। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बारिशों ने तबाही मचाई हुई है। चकवाल में 450 मिलीमीटर बारिश के बाद 32 सड़कें मुकम्मल तबाह हो गईं और सैलाबी रेले राब्ता पुल बहा ले गए और मुख्तलिफ हादसात में कम अज कम 119 अफराद जाँ बहक हुए। सिंध हुकूमत ने मानसून बारिशों में मुमकिना हादसात से बचाव के लिए इकदाम करते हुए बल्दियाती इदारों के अमले की छुट्टियां मनसूख कर दी। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि नशेबी इलाकों में डी वाटरिंग पंप्स की दस्तयाबी यकीनी बनाने के लिए इकदाम कर लिए हैं ताकि नशेबी इलाकों से बारिश का पानी निकाला जा सके। उनका कहना था कि कराची के ओल्ड सिटी एरिया में 59 खतरनाक इमारतों की निशानदही की गई है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की तकनीकी कमेटी शहर भर में सर्वे कर रही है। मकसद ऐसी इमारतों का पता लगाना है जो शहरियों के लिए खतरा बन सकती हैं। उनका यह भी कहना था कि इंसानी जानों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए 41 इंतहाई खतरनाक इमारतों को खाली करवा के सील कर दिया है। और इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप NTA न्यूज़ के साथ रहिए।